Hello everyone. Our today's topic is Class 12, Chapter number 13, Organisms and Population. In that, we have to see responses of organism to biotic factor. Hope you are already aware of the new syllabus that CBSE has provided, and this chapter is included. So let us start. हमने पहले ही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चालू कर दिया है. हमें इसमें अब रिस्पॉन्सेज देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स जैसे लाइट, हीट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है. In course of evolution, many species have evolved constant internal temperature or environment to permit all the biological reaction and physiological function to work with maximum efficiency to all over fitness of species. Organism try to maintain the consistency of its internal environment, that is homeostasis, in spite of varying external environment. There are various ways to establish homeostasis. आज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, भले ही बाहर का टेम्परेचर कितना भी वेरी क्यों ना कर रहा हो, कितना भी चेंज क्यों ना कर रहा हो. ह्यूमन बीइंग एक उसका एग्जांपल है जिसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्स है अलग अलग टेम्परेचर के प्रति कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है. उसमें पहला रिस्पॉन्स है रेगुलेट करना. देखिए रेगुलेट क्या होते हैं. All the birds and animals are capable of maintaining homeostasis by physiological means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. Thermoregulation and osmoregulation is the source of success of mammals in all the environmental conditions. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat, resulting evaporating cooling, which brings down the body temperature. In winter, we start shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. So as I said कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो वो जो तरीके से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसको रेगुलेट करना कहते हैं, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा हो. यहाँ पे एग्जांपल दिया है समर में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करना चालू कर देती है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके. और ठंड के समय जब बाहर बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है. ऐसी प्रोसेस रेगुलेट कराना. नेक्स्ट रिस्पॉन्स है कन्फर्म्स. The organism which cannot maintain a constant internal environment are called as conformers. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं उन्हें हम कन्फर्मर्स कहते हैं. The majority of animals, 99% animals, are nearly all the plants cannot maintain a constant internal environment. Mammals हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्म्स कहते हैं. हम उन्हें ऐसे एनिमल्स जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं कन्फर्मर्स भी कहा जाता है. और उसके लिए वहां की जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी अडेप्टेड हो जाती है. जैसे कि अगर कोई एनिमल पोलर रीजन में है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स पाए जाएंगे, फैट पाया जाएगा ताकि वो कोल्ड को रजिस्ट कर सके. सो अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं जिस एनिमल जो एरिया में पाया जाता है. हीट लॉस और हीट गेन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. द स्मॉल एनिमल हैव लार्ज सरफेस एरिया relative to their volume. Therefore, small animals tend to lose body heat very fast when it is very cold outside. They have to expend much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason that very small animals are rarely found in polar region. Next है migrate. Migration भी ऐसे animals जो अपना body temperature maintain नहीं कर पाते हैं उनके लिए होता है. Let us see what is migration. It refers to the process of temporary movement of animals from a stressful habitat to a hospitable area and returns when stressful period is over. So movement of animal from one place to another place
when the environment is unfavorable for them, and then again coming back to their habitat is called as migration. हम बहुत सारी birds को देखते हैं migrate करने के लिए करते हैं. नेक्स्ट है सस्पेंशन. सस्पेंशन मतलब अपनी एक्टिविटीज थोड़े समय के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन हो उसको रोक देना. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखा जाता है. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, लोअर प्लांट्स, उसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, रोक देते हैं. उसी को सस्पेंड होना या सस्पेंशन करना कहते हैं. We can say hibernation and estivation. Hibernation means the condition or period of animal or plant spending the winter in dormant state, whereas estivation means the condition or period of animal or plant spending the summer to avoid heat and staying in dormant stage. Diapause means जब छोटे एनिमल्स अनफेवरेबल कंडीशन में कोप अप नहीं कर सकते तो वो इनके जो जू प्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में अपनी एक्टिविटीज को रोक देते हैं, उसे कहते हैं डायापोज करना. देन camouflage. Some animals adapt have an capacity to blend with the surrounding environment. जैसे लिजार्ड जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है. कैमल जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जहाँ डेजर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है उसका बैकग्राउंड. पोलार बेयर स्नो में रहता है तो उसका जो बॉडी है वो उस कलर की हो जाती है. तो ऐसी एक्टिविटीज अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो अडाप्ट कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज camouflage. Then mimicry. It is a phenomena in which a living organism modified it from appearance, structure or behavior and resembles with another living organism or some non-living object so as to escape predator notice or increase the chance of capturing the prey. मिमिक्री भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेडेटर हो चाहे प्रे हो, अगर वो प्रे है तो प्रेडेटर से बचने के लिए वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के जैसा दिखाई देने लगता है, या वो प्रेडेटर है तो ज्यादा एनिमल्स को पकड़ने के लिए वो ऐसा बिहेव करता है या ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे वो नॉन लिविंग थिंग है. तो ऐसा जो अडेप्टेशन रिस्पॉन्स है उसे मिमिक्री कह सकते हैं. ये दोनों हो सकती है, प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव. प्रोटेक्टिव तब होगी जब प्रे ये सब अडेप्ट करे, ये सब चेंजेस उसमें होंगे, और एग्रेसिव जब होगी जब प्रेडेटर वो यूज करेगा मिमिक करना. सो दोनों हो सकता है. तो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई एनिमल अपने आप को क्या कर ले, सेट कर ले या उसके जैसा दिखाई दे तो उसे मिमिक्री कहते हैं. और जिस ऑब्जेक्ट के या जिस एनिमल के जैसा वो दिखाई दे रहा है तो वो एनिमल्स को मिमिक कहा जाता है. ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप you must have understood this. Thank you.